I do translation while speaking in English. Whenever I try to speak English, first I do translation. Hindi to English, then speak in English. Will I become fluent speaker in this way? My friend, if you have such question in your mind, then this video is for you. And I, Nisha, welcome you to my YouTube channel Learn English with Nisha. So my friend, if you do this translation while speaking in English and you have such doubt that in this way you become a fluent speaker or not, so let me tell you. So yes, my friend, you can become fluent speaker. And here is example in front of you. Yes, I'm talking about me. I'm not fluent enough, but I'm also trying to be a fluent speaker and I'm learning. I'm working on this. But my friend, in my initial time, I also used to do translation. I have started my journey in this way. So in your case also, I'm telling 100% you can become and you will speak English. You will also think, speak without translation. But this time, if you are doing translation for speaking English, then this is not bad. I had also started in this way. And see, this time I can speak, I can think, I can understand, I can write also. And you can also, my friend. So don't doubt on yourself that you can't. You will really become. But this time you are doing translation and starting your journey in this way, so nothing bad it in. I know why you are getting such doubt in your mind, because you must have heard from somewhere translating method is not good. If you want to become fluent speaker, think in English, speak in English. But this is also real truth. I'm telling you, being a Hindi medium and villager and not have environment, not have touch with English, you can't directly think in English, speak in English. And that's why, my friend, mostly coming to Hindi medium uh, student, they start with translating method. And same I had also done. So if you are doing, so this is not bad. Start. you मस्ट हार्ड कि आपके पास जो भी हो, जैसा भी हो, आप जहाँ पे भी हो, उसी से स्टार्ट करिए. तो आई एम टेलिंग यू, मैं बता रही हूँ कि आप जैसे भी इंग्लिश बोल सकते हैं, बोल पा रहे हैं, स्टार्ट करिए. ये मत सोचिए कि हाँ, मुझे इंग्लिश में ही सोचना है, मुझे इंग्लिश में ही बोलना है. अगर आप सोच नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वेट मत करिए. जैसे आप कर सकते हैं वैसे स्टार्ट करिए. आप ट्रांसलेटिंग करके बोल सकते हैं तो ट्रांसलेटिंग करके ही स्टार्ट करिए. बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप ट्रांसलेटिंग कर कर के ही बोलते हैं, फिर भी उसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना है. तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा टाइम लेंगे, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, देन यू विल स्पीक. बट विथ कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, माय फ्रेंड, दैट गैप विल बी फील्ड. जो गैप होगा और ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो फील हो जाएगा. और आप जो है ट्रांसलेट करना बंद कर देंगे. क्योंकि during learning English in this way, what will happen, you will learn a lot of sentences, vocabulary, idioms, phrases, and that's how, my friend, you will learn to think in English, to speak in English. But this time, in your initial time, you can't. I'm especially talking about Hindi medium, a villager. इफ़ कमिंग टू इंग्लिश मीडियम, तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग होता है, वो एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और वो बोलते भी हैं, वर्ड भी बोलते हैं, सेंटेंसेस भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, बोल सकते हैं. बट कमिंग टू इन आवर केस, इन हिंदी मीडियम केस, हम नहीं सोच सकते हैं. इवन हम वर्ड भी नहीं यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं. जानते तो बहुत सारा है लेकिन यूज नहीं करते हैं, और ना ही अंडरस्टैंडिंग है, ना ही हम सोच सकते हैं. तो
उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आप इस तरह से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटिंग करके ही सही, लेकिन आप इंग्लिश बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, डेली बोलते हैं, तो वो गैप धीरे धीरे जो ट्रांसलेटिंग आप हिंदी से इंग्लिश करने में टाइम लेते हैं, वो धीरे धीरे फिल हो जाएगा और आप बहुत सारा सेंटेंसेस, वोकेबलरी सीख जाएंगे। मेथड भी आपको आ जाएगा कि कैसे आपको जो है इंग्लिश बोलना है, चीज़ों को ट्रांसलेट करना है। Everything you will learn, and after that your mind will start thinking in English. You will start understanding, speaking everything, but this time it's hard for you, because this is my experience, my friend. I have also tried it. I have learned speaking English in translating method way. So that's why I'm telling this is not bad. And why you are able to do this? See, in English, in our school days, we have studied it as a subject. So we know how to read only. We don't understand. We don't know how to speak. We have only study as a subject. We know how to read and we know how to translate. So that's why you are able to do this, but you are not able to speak and think, understand, क्योंकि वो हमने किया ही नहीं है, बोलना कभी ट्राई भी नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है हमारे, क्योंकि एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुआ है, हमारे पास उतना सेंटेंसेस भी नहीं है, वर्ड्स भी नहीं है। तो इस तरह से जो है हम नहीं सोच सकते हैं, इस तरह से हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं। कमिंग टू ट्रांसलेटिंग, वी हैव डन अ लॉट। सो माय फ्रेंड, आई विल टेल यू, आई वांट टू टर्न योर अटेंशन वंस अगेन दिस पॉइंट, कि जहाँ हो, जैसे हो, और जैसे भी आप एबल हैं इस लैंग्वेज को बोलने में, अंडरस्टैंड करने में, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने में, स्टार्ट विथ दैट। डोंट थिंक दिस इज़ बैड, गुड, विल यू बिकम फ्लुएंट स्पीकर और नॉट। आई एम एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैड ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी विथ ट्रांसलेटिंग मेथड वे। मैं भी ट्रांसलेशन करती थी और ऐसे कर कर के जो है प्रैक्टिस करके, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस के साथ जो है, वो जितने भी मेरे गैप थे, मैं सोच नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, सारे जो है अब खुद रिमूव हो गए। क्यों? क्योंकि मैं कंसिस्टेंट थी और वैसे कर कर के जो है प्रैक्टिस किया करती थी। तो मेरे माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मिल गया, सेंटेंसेस मिल गया, आइडियाज़ मिल गया, कैसे सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म करना होता है। नाउ आई कैन थिंक, आई कैन स्पीक, I can write also. So my friend, you can also do. Don't stop your learning. Start. If you are able to do in translating method way, start that one. There are lot of way to start. बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करने के, बोलने के, लेकिन हर तरीका आप पे अप्लाई नहीं होता है। You yourself have to choose which one is suitable for you. तो मुझे भी लगा कि ट्रांसलेशन मेथड जो है मेरे लिए सूटेबल था, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश में सोचने की कोशिश की थी, नहीं सोच पाई, इंग्लिश नहीं बोल पाई। ये सुना कि मूवी देखते हैं, मूवी देखेंगे तो सीख जाएंगे, कैसे अपना लैंग्वेज सीखे हैं लोगों को सुन सुन के बचपन में, वैसे सीख जाएंगे। वो भी ट्राई किया, नहीं बोल पा रही थी, लेकिन ट्रांसलेटिंग मेथड से जो है मैं बोल पा रही थी, और इसी मेथड से मैंने अपना जर्नी स्टार्टेड किया और कंसिस्टेंट रही, वर्क करती रही, हार्ड वर्क किया, एंड नाउ आई एम एबल टू डू। सो माय फ्रेंड, यू कैन आल्सो डू एंड यू शुड कीप डूइंग, बी कंसिस्टेंट। क्योंकि जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है, आप सुने भी नहीं है, या लेस नॉलेज है, उस चीज़ में आप ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। एंड सेम इंग्लिश फॉर अस, हमारे पास इंग्लिश के सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं
और गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा वर्ड सेंटेंसेज हम यूज ही नहीं करते हैं, और ना ही सुनते हैं हम, ना ही राइट करते हैं, ना ही वॉच करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है डायरेक्टली उसमें थिंक करना और स्पीकिंग करना। बट हाँ, अगर हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग करना, ट्रांसलेशन करना, वर्ड सीखना, सेंटेंसेस, सो ग्रेजुअली इन दिस वे वी कैन ऑल्सो बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, thinking, speaking gradually. But at the very first time, when you are zero, you can't. So understand the reality and according to that, take the action. Start your journey. Don't think this one is bad, this one is good. Which one is best suitable for you and working for you. हर तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता है. So which one is working for you, choose that one and start with that one. My friend, I explained, you know, if you do translating method and you are able to speak English in this way, then keep doing, be consistent, keep learning. You will start thinking, you will start understanding, you will start speaking. Never leave consistency. Keep working, keep hard working, learning, listening, writing, speaking. You will become fluent speaker, think in English, understand everything. So I hope, my friend, now you understood and you will get your answer in this video. So I hope you like this video. If you, then please like, share and subscribe. Bye bye, we will meet in next video.